for domain, this x plus 3 should not be equals to 0. Should not equals to 0. No. This is incorrect answer. Diksha has right answer. R minus of minus 3. Okay. So this equals to x not equals to minus 3. That means this function has domain all real number except x equals to minus 3. So what is the domain? Domain of this function df should equals to all real number minus of minus 3. Have you got the point? Okay. Shivam? Yes, sir. This is not r minus of 3. This is r minus of minus 3. Okay? Have you got the point? Shivam? Yes, sir. Okay. Now, I'll give you the next question. Right? What is the domain for this x equals to x plus 1 upon x square minus 3x plus 2? What is the domain for this function? Y equals to x plus 1 divided by x square minus 3x plus 2. Comment your answer. Okay, Anand Raj has given the right answer. But sorry, you have taken r minus 1 to 3, 1 to 2. I think this is incorrect answer. Yeah, Anjan Kumar Sharma is given the right answer. Anand? Sir. This is not the correct bracket. Okay, you have to use the curly bracket r minus except these 2 points only, not the whole interval 1 to 2. Okay, so Okay. you have to consider only two values, x equals to 1 and x equals to 2. So we have to exclude only these 2 points 1 and 2. Okay. 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 Can you find the range of this function also? Please find the range of this function. For domain for what we have to do? We have to do this x square minus 3x plus 2. This cannot be equals to 0. Okay. So we will write, after factorizing it, we'll get x minus 1 into x minus 2 equals to 0. That means x equals to 1 comma, but this should not equals to 0. So domain of this function is all real number except these 2 points 1 comma. What is the range of this function? Can you find the range of this function? Shivam, Diksha, Anjan, Anand. Please write yes if you can. Shivam, all real number is the range.
how will you find the range of this function? Okay, try. इसके बाद मैं आपके सामने इरेशनल फंक्शन का रेंज और डोमेन डिस्कस करने वाला हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस करने वाला हूँ. बट फॉर अ मोमेंट we'll discuss the previous concepts as well. Okay? और जो आशीष सर ने आपको जो सीट्स दी हुई है उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली अभी मेरे पास वो सीट अवेलेबल नहीं है, so I try to solve them in the next class before you. सो रेंज के लिए हमें क्या करना होता है? रेंज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें ये y जो है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है. दैट मींस y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. ओके, सो रेंज के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. व्हाट वी गेट? y² माइनस 3xy प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1. ओके सर 2i ना होगा. 2 ये आया. थैंक यू. 2 आया. ओके, सो दिस इज y² माइनस ऑफ 3y प्लस 1 into x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सही है? यस, से यस और नो. अब देखिए रेंज कौन सी वैल्यू होती है? रेंज x के उस सेट को बोलते हैं, रेंज y के उस सेट को बोलेंगे जहां पर x हमारा रियल हो. ओके, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये गिवन है कि x क्या है? x रियल है. x belongs to रियल नंबर. दैट मींस हमारा इस जो डिस्क्रिमिनेंट होगा फॉर दिस फंक्शन या से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0. सो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर इक्वल टू 0 कराएंगे तो दिस टर्म x का कोएफिशिएंट -b होता है, तो -b दैट मींस 3y प्लस 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा. b² माइनस 4ac, b² माइनस 4, a के प्लेस पर क्या है? y इंटू c के प्लेस पर क्या है? 2y माइनस 1. दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0. आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं? यस सर. ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर. और लोग, अंजन, दीक्षा, शिवम, have you got the point? देखिए क्या करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. अब हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज y की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए x क्या होगा? रियल और फाइनाइट होगा. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल रियल हो, ओके, तो क्या होता है? उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना होगा. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac. b इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो b² कर दिया हमने, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा. -4 into a के प्लेस पर है y और c के प्लेस पर है दिस कांस्टेंट टर्म. ओके, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर दीजिए प्लीज. आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 -2√6
यूनियन -5 + 2√6 टू इंफिनिटी। ओके, दिख रहा है आपको? ये आया क्या सभी लोग का? हेलो, हैव यू फाइंड दिस? ओके ओके आनंद। Now I will give you the next question. Y equals to x square minus 1 over x square plus 1. Find the range and domain of this function. Good, Anand Raj, good. Shivam, again. सर क्वेश्चन एक बार पढ़ फिर से। Question is y equals to x square minus 1 divided by x square plus 1. You have to find the range and domain of this function. इस साइड का इरेज कर देता हूं मैं। ओके, Anjan, what's the problem? Domain. Okay, Shivam, oh, Anand, this is the domain. Domain is incorrect. R equals to minus of excluding -1 or +1. Incorrect. Anjan correct. Shivam correct. Diksha, hello. ओके आनंद, ओके। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो 0 में +1 जैसे ही हम ऐड करेंगे विल गेट ग्रेटर देन 1। ओके, ग्रेटर देन 0। सो इट इज नेवर इक्वल्स टू 0। सो डोमेन इज all real number. And what about the range? Range find out कीजिए इसका। सर न्यूमरेटर में x³ -1 है। नो नो, x स्क्वायर न्यूमरेटर में x स्क्वायर -1 है और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर +1 है। दिख रहा है प्रॉपर? पिछले कॉन्सेप्ट को ही यूज कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए और y फाइंड आउट करना है। दैट और कैसा y फाइंड आउट करना है जिसके लिए x रियल होगा। थैंक यू आशीष। Are you all doing this? Okay. देखें क्या करेंगे, जैसा कि हमने बोला था
कि यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, we'll get yx square plus y equals to x square minus 1. This can be written as y minus 1 into x square plus y minus y plus 1 equals to 0. अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर का टर्म तो 0 है, तो b स्क्वायर दैट मींस 0 का स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पर कितना है y minus 1 into c के प्लेस पर कितना है y plus 1, this should be greater equal to 0. आया समझ में? ओके, सो हम क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी गेट 4 टाइम्स ऑफ y minus 1 into y plus 1. तो अगर हम माइनस साइन से किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो दिस greater equal to sign will converted into now less than or equal to 0. So this will be y minus 1 into y plus 1 less than or equal to 0. तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट वी गेट y belongs to -1 से +1. ये इंटरवल फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, किसी ने आंसर कमेंट नहीं किया इसका, हेलो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप रेज योर हैंड, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है, विल डिस्कस अगेन, एक बार और देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी रेशनल फंक्शन उसको बोलते हैं जहां पर एक न्यूमरेटर में एक फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होता है, ओके, तो न्यूमरेटर दैट मींस y इक्वल्स टू px by qx, px by qx. अगर कोई रेशनल फंक्शन है और अगर हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है तो सिंपली वी हैव टू एक्सक्लूड दोज पॉइंट्स वेयर qx इक्वल्स टू 0. जहां पर ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो जाता है, पूरे रियल नंबर में से उस 0 वाले उस वैल्यूज को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं. और इसके रेंज के लिए क्या करेंगे हम, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और हमें ऐसा y फाइंड आउट करना होगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में होना चाहिए, ओके, तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको आगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे, ओके. सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. अगर आपके पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, गिवन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके. कोई दिक्कत है? देख रहा है आपको? इसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है. Okay, Anand, try this one. Okay. Anjan, Ashish. Domain is all real number. Okay, that's good. Cool. Anjan, Ashish, can you find the domain? First one.
शिवम, दैट्स गुड। उसी तरह फाइंड आउट करना है। तो इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज इसका। शिवम, कैन यू फाइंड द रेंज? अंजन, ओके, गुड। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। ट्राई कीजिए सभी लोग। जिनका आंसर आएगा वो कमेंट करेंगे। रवि, सिद्धार्थ, आर यू डूइंग दिस प्रॉब्लम? भाई रवि, क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। नहीं आ रहा है? ओके। सो डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके, ये देखिए, ये वाला जो ऊपर का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर का फंक्शन, और ये क्या है? डिनोमिनेटर का फंक्शन। तो डोमेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ऐसा x फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर ये 0 होगा। सो देखते हैं, लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम देख रहे हैं, मतलब ये 0 नहीं होने चाहिए, यही ना हमें करना है। हमें ये 0 नहीं चाहिए, और जहां जहां पर ये 0 होगा वो सभी x को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको हम 2ab, इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। नो आनंद, इनकरेक्ट है ये। सीधे इंटरवल दीजिए y का। आनंद, y का इंटरवल मेंशन कीजिए। रॉन्ग आ रहा है वो, ठीक है। तो दिस इज इनटू x, और इस 1 को हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। वन पार्ट इज 1/4 और सेकंड पार्ट इज 3/4। तो हम देख रहे हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 1/x प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3/4, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। गलत आंसर है आनंद, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और 0 में समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ये जो क्वांटिटी है, this will be always greater equal to 0, greater than 0, not equals to 0। okay, so ये कभी भी 0 नहीं होगा। so domain of this function is all real number। okay, रवि, समझ में आया? अंजन शर्मा, इनकरेक्ट आंसर है ये भी।
गुड। अब देखिए इसका रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ओके, इरेज कर दे रवि। देखिए हमने आपको क्या बताया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज y टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, y माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। देखिए y एक्स स्क्वायर हुआ और ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, दिस विल गेट y माइनस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इनटू x प्लस y माइनस 1। ओके, अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए सिद्धार्थ इनकरेक्ट आंसर है ये भी। ओके, बट ट्राई कीजिए। गुड। तो देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर का मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज व्हाट, दिस y माइनस 1 इनटू c कितना है, y माइनस 1। दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। रवि ये समझ में आया कि ये ग्रेटर देन 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैसा y चाहिए जिसके लिए हमारा x क्या होगा, रियल और फाइनाइट होगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसका वेरिएबल रियल और फाइनाइट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। सो हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि x रियल है इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सो हमने इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया। तो व्हाट वी गेट y प्लस 1 टू द होल स्क्वायर माइनस, ये क्या करना होगा, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y minus 1 to the whole square, this is greater equal to 0. So this is a square minus b square, so a plus b, that means y plus 1 plus 2 times of y minus 1 into a minus b में a के प्लेस पर y plus 1 है और माइनस 2 times of y minus 1, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। आया समझ में ये? तो यहां से हमें मिलेगा 3y और ये 1 और ये माइनस 2, तो विल गेट माइनस 1। और यहां से देखिए ये माइनस 2y और प्लस y, व्हाट वी गेट माइनस y, और यहां से माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 और दिस इज प्लस 1, तो प्लस 3, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लग रहा है यहाँ पे आप लोगों ने गलती की हुई है, इसीलिए आपको ये फाइनल आंसर जो फाइनल रिजल्ट है वो गलत। या आनंद हैज गिवन द राइट आंसर बट इन क्लोज इंटरवल। ओके, यू हैव यूज्ड द ओपन इंटरवल हियर, सो यूज क्लोज इंटरवल। माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जस्ट वी राइट इट एज y minus 3 into 3y minus 1। हमने माइनस का मल्टीप्लाई सिर्फ इस वाले में किया है। ओके, प्रोडक्ट में है तो किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, तो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, सो आप इसका आंसर अब बता सकते हैं, दिस इज इन क्लोज इंटरवल 1/3 टू। ओके ओके आनंद, दैट्स कूल। रवि समझ में आया आपको ये? -3, नो नो आनंद इनकरेक्ट है,
निगेटिव कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। दिस इज फ्रॉम 1/3 टू -3। गुड, दैट्स फुल। रवि, शिवम, समझ में आया आपको? गुड। सो हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस, और जो आपको आशीष सर ने जो सीट दी हुई है उसका भी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, नाउ वी विल जंप ओवर द इरेशनल फंक्शन। ओके, इरेशनल फंक्शन का मतलब वैसे फंक्शन जो स्क्वायर रूट के अंदर है, उसका रेंज और डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। शिवम, आ रहा है समझ में? सो आपको एक दो क्वेश्चन, गुड, एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। आप इसको होमवर्क की तरह ट्रीट कीजिए और सॉल्व कीजिएगा घर पे। कल इसका डिस्कशन करेंगे, हम लोग करेंगे। फर्स्ट वन होमवर्क ले लीजिए, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। y इक्वल्स टू 1/x² प्लस x प्लस 1। इस फंक्शन में हमें रेंज और डोमेन दोनों फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू x ओवर x² प्लस x प्लस 1। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं इरेशनल फंक्शन पे। इरेज कर दें। इरेशनल फंक्शन, ये इरेशनल फंक्शन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट fx के फॉर्म में गिवन होगा। आया समझ में? तो इरेशनल फंक्शन हम जानते हैं, यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इरेशनल फंक्शन में आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन जो है या टर्म्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए। ओके, दैट मींस नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस फॉर डोमेन पार्ट, for domain what we have to be fx greater equal to 0। ओके, और अगर स्क्वायर रूट का जो या इरेशनल फंक्शन इस फॉर्म में होगा, अगर इरेशनल फंक्शन इस टाइप का होगा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट px अपॉन qx। ओके, तो डोमेन पार्ट के लिए क्या करना होगा, हमें px बाई qx ये जो फंक्शन है ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम x की उस वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे जहां पर ये x का qx की वैल्यू 0 होगी। होमवर्क वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। y इक्वल्स टू 1 बाई, जिन्होंने होमवर्क वाले प्रॉब्लम नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। ओके सिद्धांत, गुड। y होमवर्क वाले प्रॉब्लम में था y इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन था y इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके ओके, तो आई विल गिव यू 1 और 2 क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को इरेज कर दें। आशीष सर ने आपको आई थिंक ये बताया होगा इस कॉन्सेप्ट को इतना, ठीक है? तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सीधे इसका।
y equals to square root x square minus 2x minus 3। इसको कीजिए, क्या दिया हुआ है, y equals to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, हमें इसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका डोमेन आप फाइंड आउट कीजिए, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका रेंज कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। ओके, हेलो, डोमेन इज -1 to 3। आनंद इनकरेक्ट है ये, बिकॉज अब हमें सिर्फ ये इक्वल टू 0 नहीं देखना है, इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को एक्सक्लूड नहीं करने हैं। ओके, हमें वैसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जहां पर ये राशि -∞ to -1, so v to infinity। Good, Rashi has given the correct answer। अंजन इनकरेक्ट, आनंद इनकरेक्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, और डोमेन पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटरवल चाहिए। ओके, सिद्धांत, गुड वन, गुड। रवि, आर यू देयर? ट्राई कीजिए इसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 into x minus 3 this is greater equal to 0। x plus 1 x minus 3 greater equal to 0। ओके, अब अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनइक्वालिटी देखनी है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है साइन स्कीम प्लॉट करने में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, 1,3 यहाँ होगा। अब अगर साइन स्कीम प्लॉट करना है तो वेवी कर्व मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट सिंपली आप क्या कीजिए, देखिए 3 के बाद की कोई एक वैल्यू आप खुद से लीजिए। ठीक है, 3 के बाद लेट अस अज्यूम दैट 4 एक क्वांटिटी मिलेगी, 4 एक वैल्यू मिलेगी, 4 की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 4 + 1 5 और 4 - 3, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल गेट अ पॉजिटिव। दैट मींस 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे और इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आपको देगा। ओके, अब -1 से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम दैट 0 एज्यूम कीजिए, 0 इसमें रखिए, 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 3 नेगेटिव, तो इस इंटरवल में आपको नेगेटिव आउटपुट मिलने वाला है। और -1 से छोटी कोई वैल्यू सोचिए, अंजन, गुड। -1 से छोटी वैल्यू कोई लेते हैं तो -2 अगर हम लेते हैं, -2 + 1 will get negative और -2 - 3 -5 अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इस वाले रेंज में भी हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका डोमेन होगा, इस इनइक्वालिटी के लिए पॉजिटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ, तो डोमेन इज -∞ to -1। ओके, दिस -1 should be in closed interval। This -1, Anand has given the correct notation। Okay, so domain is x belongs to -∞
to -1 in closed interval. Okay, union 3 to infinity. ये जो 3 होगा वो भी क्लोज इंटरवल में होगा. ओके, तो एक बार अपने इंटरवल्स को भी ध्यान में रखेंगे आप कि कब आपको क्लोज इंटरवल लेना है, क्योंकि यहाँ पर 0 को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है. ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर का पार्ट है और स्क्वायर रूट के अंदर 0, जैसे स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, 0 आता है. ओके, सो हम x की वैल्यू यहाँ पे हम x की उस वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे जहां पर ये टोटल फंक्शन जो है अपना आउटपुट 0 देगा. ओके, तो समझ में आ रहा है ये. अब हम इसके रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं. रवि, इज दैट क्लियर? आसमी वर्मा, गुड, बट notation is incorrect. -1 and +3 should be in close interval. Siddhant also mention the incorrect symbol of interval. Please note that. Okay, अब देखते हैं इसका. Good, Anand, good. Can you find the range of this function? Say yes or no, or raise your hand, please. If you can find the range, okay, okay, Siddhant, good. Any other? Can you please find the range of this function? I'll give you 1 minute to try this range of this function. Okay, इरेज कर देता हूं मैं इसको. अगर किसी को साइन स्कीम में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार ध्यान दीजिएगा. रेंज इज 0 to infinity. अभिषेक, गुड. Abhishek has given the right answer, 0 to infinity. That means all positive numbers are range of this function. Good. Ashmi, 0 to infinity. Anjan, good. All positive number. Good, good. All positive नहीं बोलेंगे, बोलेंगे all non negative बोलेंगे. पॉजिटिव जब हम बोलते हैं तो उसमें 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं. ओके, सो यू हैव टू ऐड 0 आल्सो. ओके, सो हाउ विल फाइंड दिस? जब भी आपको स्क्वायर रूट के यानी इरेशनल फंक्शन मिले तो आप क्या करेंगे, ट्राई कीजिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में आप एक्सप्रेस कर पाए. ओके, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए x² -2 into x, अगर हमें b के प्लेस पर 1 मिल जाए तो 1 का स्क्वायर भी मिलना चाहिए. तो इस -3 को हम 1 - 4 लिख सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज x -1 to the whole square -4. ओके, आ रहा है समझ में? Yes, sir. सो अब क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए, हमें इस x² -1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए. ठीक है, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो पाएगा. तो जैसे ही अगर हम इसको इधर ले आए,
x minus 1 to the whole square minus 4 this should be greater equal to 0. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1 to the whole square minus 4 this should be greater equal to 0. और यही तो वैल्यू आपको y दिया हुआ था, ये वैल्यू क्या है, y है, तो this y should be greater equal to 0. तो y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए. So range of this function range of this function is what? Is 0 to infinity. Okay. No, there is no alternative method here. Okay. हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में ही चेंज करना होगा. जब भी आपको इरेशनल फंक्शन मिले आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, एंड परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए कि किस वैल्यू पर वो डिफाइन होगा. अभी एक दो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस मेथड सिद्धांत? Siddhant, can you hear me? Say yes or no. Yes, sir. All irrational numbers का नहीं, ऐसा नहीं है आनंद. अभी बहुत सारे प्रॉब्लम में मिलेंगे हमें ऐसा, तो हम देखेंगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए. y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. इसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट कीजिए. क्या दिया हुआ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7. आनंद ऐसा नहीं होगा, इरेशनल फंक्शन का जो रेंज है नॉन नेगेटिव नंबर होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है. हमें हर कंडीशन में फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका सॉल्यूशन होता है. ऑल क्लियर भी दो तरह से होते हैं सिद्धांत. ठीक है, तो उस तरह का ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए. ऑल क्लियर मींस दैट्स क्लियर. ओके, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वही वाला क्लियर हो जो नॉर्मल क्लियर होता है. Good. Ravi -1 to 7. Good. Ravi has given the correct answer. Rasi, good. Anjan, good. तो डोमेन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. रेंज फाइंड आउट करके देखिए. आशमी भी सही आंसर दी है. गुड. Anand has given the right answer. Good. Now इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए. That's good. Cool है. डोमेन वाले पार्ट में किसी को कोई इश्यू नहीं हो रहा है. ओके, तो एक डाउट क्लियर हो गया कि आप लोगों को इंटरवल्स फाइंड आउट करने आ रहे हैं. ठीक है, ये बहुत कि किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इज द बेसिक प्रायोरिटी. कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए आपको. ओके, सो बाकी कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख सकते हैं. X belongs to. Good. Good सिद्धांत. अब आप लोग रेंज फाइंड आउट कीजिए. रवि, आपने अभी तक डोमेन नहीं फाइंड आउट किया. रवि, कुछ प्रॉब्लम हो तो
if you have any doubts or problem, you can raise your hand. Okay? तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. तो जहाँ पे डाउट्स हो वहाँ पे कमेंट कीजिए या अपने हैंड्स को रेज कीजिए. So that we can discuss it again. Okay? Okay. So आप लोग रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं. आनंद, so, अब हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा इसमें कि we have to make sure that we are going to make it a perfect square. Okay, so हम क्या करेंगे, y equals to square root of माइनस कॉमन ले लीजिए. ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में होने के लिए जो दोनों स्क्वायर्स हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं. तो मेक श्योर दैट द गिवन स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 7. किसी को कोई डाउट? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स. तो हमें 3 का स्क्वायर चाहिए. 3 के स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, तो 3 के स्क्वायर को ऐड कर दिया यहाँ पर. Okay, so what we get minus times of this is x square minus 2 into a into b plus 3 का स्क्वायर. और ये देखिए, अब हम ये -9 और -7 -16 होगा और -16 ये मल्टीप्लाई होके +16 हो जाएगा. what we get +16. तो हमें मिल गया y की वैल्यू जो मिलेगी वो 16 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर. आ रहा है सभी लोग को समझ में? हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. अब बताइए तो आप लोग कि इस y को डिफाइन होने के लिए इस x माइनस 3 का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, बता सकते हैं? इस y की वैल्यू यानी कि इस स्क्वायर रूट टर्म को डिफाइन करने के लिए ये अपना वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक जा सकता है. तो देखिए, हम यहाँ पे ये कंडीशन इंपोज कर लेते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम है? 0 to 16 आई थिंक रॉन्ग आंसर है. थोड़ा सा और ट्राई कीजिए आनंद. गुड अटेम्प्ट करते रहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 16 से हमेशा छोटी होनी चाहिए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसकी वैल्यू हमेशा, क्योंकि अगर ये जैसे ही 16 को एक्सीड करेगा, 16 से एक्सीड करेगा तो 16 माइनस ग्रेटर देन 16 नंबर, व्हाट वी गेट अ नेगेटिव. तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो हमें ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने पड़ेंगे कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट दिस शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 16. ओके, सो हम लोग इस इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं. तो व्हाट वी गेट
या हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इसका फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, तो वी कैन राइट इट एज -16 is less than or equal to minus times of x minus 3 to the whole square and this is less than or equal to 0। आया समझ में, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वालिटी रिवर्ट होने का मतलब ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला आएगा। ओके, अब हम लोग 16 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 16 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस विल बी -16 प्लस 16, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, this is 16 minus x minus 3 का whole square and this is 0 plus 16 is again 0। okay, तो हमें ये क्या फाइंड आउट हुआ, 0 is less than or equal to 16 minus x minus 3 to the whole square and this is less than or equal to 16। okay, अब थ्रू आउट द इनइक्वालिटी स्क्वायर रूट इंपोज कर देते हैं, तो अगर तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 and this is the square root again 16 minus x minus 3 का whole square and 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। और अब आप ये देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस, गुड, आनंद हैज करेक्टेड हिज आंसर, तो दिस विल बी व्हाट, 0 इज दैट मींस दिस y, ये क्या है, ये टर्म y के इक्वल है। ओके, तो ये जो होगा y and this is less than or equal to 4। तो are you getting this point? Say yes or no or raise your hand please, if you have any doubts then raise your hand। so अब हम ये समझ रहे हैं कि सभी ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, गुड। तो अभी किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक आनंद हैज कमेंटेड दैट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ओके, तो आपको अब ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कुछ भी हो सकता है इसका रेंज, ठीक है, हम ये प्री डिसाइडेड नहीं रहेंगे कि इसकी जो स्क्वायर रूट है तो रेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या हमें करना होगा, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट फंक्शन एंड देन restrict those square root function in their respective interval, in their respective values, not interval, sorry, in respective values। और वो values कैसे हम define करेंगे, make sure that this square root quantity under root square के expression के अंदर जो values है वो हमेशा पॉजिटिव हो। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए हमने दो, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के पार्ट को आगे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी हम लोग ने दो फंक्शन का डिस्कशन किया। फर्स्ट वन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द रेशनल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द irrational function। In the next class we will discuss about the range and domain of exponential function and logarithmic function और let's say NCR और NPR से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने NCR और NPR के बारे में डिस्कशन हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में करेंगे, बट हियर अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कैसे कि हम उसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन इंपोज करेंगे वो देखेंगे। ओके सिद्धांत, इज दैट क्लियर? गुड। सो attempt this question. I will give you the next 3 minutes to find the range and domain of this function. Okay, so let's try this function. जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो अपने हैंड्स को रेज करेंगे या कमेंट करेंगे। डोमेन इज 4 to
6 आनंद राज, गुड, दैट्स कूल। आगे का ट्राई कीजिए, रेंज फाइंड आउट कीजिए इसका। डोमेन इज आशमी, गलत है आशमी। आप लोग, आपने लग रहा है इंटरवल फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। एक बार फिर से ट्राई कीजिए डोमेन के लिए। राशि राइट आंसर, डोमेन सिद्धांत राइट आंसर, आशमी ट्राई इट अगेन प्लीज। अभिषेक, अभिषेक कैन यू हियर मी? गुड गुड आशमी। अभिषेक, गुड अंजन, अभिषेक ट्राई कीजिए प्लीज। अभिषेक, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं, एक बार फिर से हम समझा सकते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है? अभी देखिए हम लोग क्या है कि आमने सामने नहीं है, नहीं तो फेस के एक्सप्रेशन देखकर हम लोग को समझ में आ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सो अभी हम लोग आमने सामने नहीं है, इंटरेक्टिव, उतना इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट्स एटलीस्ट क्लियर हो। ओके, क्योंकि ये क्लास का पर्पस ये है कि आप डाउट्स में ना रहें, तो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, डोमेन एंड रेंज उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे। गुड, ये तो लीनियर है, गुड वन। अभी किसी ने कमेंट किया था कि क्या सर हम इसको किसी अल्टरनेटिव मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो हमने बोला था कि नो, देयर इज नो अल्टरनेटिव मेथड, दैट मींस स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आपको देख के आना, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन इंपोज कर रहे थे वो किसी लीनियर वगैरह में नहीं कर सकते। ओके, तो इसको आनंद इसका स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, रेंज फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर इसका दोनों तरफ फाइंड आउट कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ। Are you all doing this? Hello, are you all doing this? सो डोमेन के लिए बहुत इजी था कि हमारा ये एक्सप्रेशन 4 माइनस ए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि x जो है ग्रेटर इक्वल टू 4 होगा। और दूसरा ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन ये भी भाई ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ से x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 मिला। दोनों इनइक्वालिटीज को एक साइन स्क्रीन पे प्लॉट करेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। इंटरसेक्शन लेंगे, पहला वाला कह रहा है, ये इनइक्वालिटी कहता है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो दैट मींस ये नंबर लाइन पे 4 से राइट हैंड साइड की जितनी वैल्यूज है उसको कवर करेगा, और ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए, तो ये 6 से पहले लेफ्ट मोस्ट जितनी वैल्यूज है उसको कवर करेगा। सो हम यहाँ पे कॉमन रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कहेंगे कि डोमेन हमारा जो होगा क्लोज इंटरवल 4 to 6 है। ओके, डोमेन नो नो अभिषेक, रेंज ये भी गलत है। गुड 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 सिद्धांत, स्क्वायर रूट 2 आनंद, मेक इट करेक्ट,
ट्राई इट अगेन। थोड़ा सा एरर है आपके फाइनल आंसर में, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आनंद, कैन यू हियर मी? अभिषेक, मैंने अभी ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए, डोमेन के लिए फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने ये ग्रेटर देन 0 किया, ये भी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कराया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर x का इंटरवल मिला और यहाँ पर x का इंटरवल मिला। अब हमें ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस इन दोनों इंटरवल में कौन सा इंटरवल कॉमन है उसको फाइंड आउट करेंगे। गुड अभिषेक। स्क्वायर रूट 2 गलत है आनंद। आंसर आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूं। स्क्वायर रूट 2 से +2 की वैल्यू आएगी। देयर इज नो नेगेटिव साइन इन द इंटरवल, सो हमें लगता है कहीं पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आनंद, एक बार ट्राई कीजिए। सो अभिषेक, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कैसे हम लोग इंटरवल को कॉमन कराते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या करें, नंबर लाइन पे इस इंटरवल को प्लॉट कीजिए, जो भी इंटरवल कॉमन होगा उसको क्या कर लीजिए, पिक कर लीजिए। आसमी, ट्राई कीजिए। आसमी, गुड। राशि, रेंज फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, रेंज के लिए क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बार में बताया कि परफेक्ट स्क्वायर तो भाई आपको बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x - 4 b स्क्वायर, तो यहां से ये भी 6 - x प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज x - 4 एंड दिस इज 6 - 6। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये -x और +x कैंसिल हो जाएगा, 6 - 4, this will be 2 and this will be 2 times of, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा हमें, 6x - x स्क्वायर -24 and plus 4x, this will be y square 2 plus 2 times of, ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 10x -24 2 plus 2, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर -10x और प्लस 24 मिलेगा, प्लस 24 को 25 - 1 हम लिख लेते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 2 + 2 स्क्वायर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक का टर्म परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो, दिस कैन बी रिटन एज 1 - x - 5 टू द होल स्क्वायर, यही आ रहा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट, और ये किसकी वैल्यू मिल रही है, y स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। ओके, अब हम ये इसका इंटरवल देखिए, इस पूरे क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इस स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन भी डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन होने के लिए इसकी वैल्यू जो है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी 1 माइनस लेस देन 1 नंबर विल बी पॉजिटिव, सो दिस क्वांटिटी 1 माइनस this quantity x - 5
to the whole square. This should be greater than 0, but it should be less than 1 to define this irrational function. That means this square root. अब माइनस साइन से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी -1 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 5 to the whole square एंड 0. माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, हमारा ये जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स कर गई. ओके, अब हम ऐड करते हैं 1 दोनों तरफ, पूरे इनइक्वालिटी में 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करके तो -1 एंड +1, दिस विल बी 0 एंड दिस इज 1 minus x minus 5 to the whole square and this is less than 0 plus 1, this is 1. Okay, अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ. स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा. दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 minus x minus 5 to the whole square and this is less than 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वालिटी में. 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 into 2 0, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 minus x minus 5 to the whole square and this is less than equal to 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो जाएगा. अब दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे. हमें क्या करना होगा, इसकी तरह इसको एक्सप्रेस करना है. इस इक्वालिटी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 ऐड कर देंगे थ्रू आउट द इक्वालिटी, तो 0 plus 2 2 हो जाएगा एंड दिस इज 2 times 2 plus 2 times of square root of 1 minus x minus 5 to the whole square and 2 plus 2 is 4. ठीक है, एंड दिस इज 2 और ये वैल्यू किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है. So this is y square and this is less than equal to 4. अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ √2 to infinity. गलत है अभिषेक, एक बार फिर से ट्राई कीजिए तो देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. इसको इरेज कर देते हैं. अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरे इंटरवल में तो दिस विल बी √2 टाइम्स ऑफ y is less than. सभी को क्लियर है? गुड. अंजन, गुड. इज दैट क्लियर? देखिए एक बार फिर से एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं. क्या हमें क्या करना था, हमें जब भी इस तरह का इरेशनल फंक्शन मिलेगा हमें क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा. विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ. स्क्वायर करने के बाद हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये फाइंड आउट किया. अब हम इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए ये कंडीशन इंपोज करते हैं कि भाई स्क्वायर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. बट अगर ये 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव, लेट सपोज कि x minus 5 to the whole square की वैल्यू 5 आ गई, तो उसकी वैल्यू 5 आ गई तो 1 minus 5 नेगेटिव हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो सो टू डिफाइन इट वी रेस्ट्रिक्ट दिस x minus 5 to the whole square up to 1. सो हमने 1 तक इसको रेस्ट्रिक्शन में रखा. और क्या करेंगे, अब इस क्वांटिटी को हम पूरी तरह से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको बारी बारी से देखना है कि क्या क्या किया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं. तो हम यहाँ पे माइनस साइन से हमने पहले बार फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया. जब हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटीज वगैरह, इनइक्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है. तो इनइक्वालिटीज क्या हो गए, रिवर्ट हो गए. तो ये साइन इधर चला आया और एज इट इज हो गया. अब क्या हमें यहाँ पे देखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 का एडिशन है, तो थ्रू आउट द इनइक्वालिटीज 1 ऐड कर देंगे. तो -1 and +1 going to be 0 and this is +1 minus times of this and this is less than 0 plus 1 is 1. Okay, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए. अब इसके बाद स्क्वायर रूट चाहिए. तो स्क्वायर रूट लाने के लिए हम इसमें थ्रू आउट द इनइक्वालिटी स्क्वायर रूट लेते हैं. 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट भी
1 होगा। अब इस स्क्वायर रूट के बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 into 2 0 हो जाएगा, 2 times of this and 1 into 2 will get 2। ओके, फिर इसमें दिखा हुआ है कि 2 का एडिशन है, तो हमने थ्रू आउट इनइक्वालिटी 2 ऐड कर दिया, तो 0 plus 2 is 2, 2 plus this is something like this and 2 plus 2 is 4। और ये इतना एक्सप्रेशन जो है ये y स्क्वायर के बराबर है, तो फाइनली वी कैन राइट दिस 2 is that means this y square is greater than or equal to 2 and this is less than or equal to 4। और टेकिंग ए स्क्वायर रूट दैट मींस पूरे इक्वालिटी में स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें y चाहिए, y स्क्वायर गिवन है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें रूट अंडर 2 2 मिल जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? रेज योर हैंड प्लीज। समझ में आया? हेलो, से यस और नो? गुड। आसमी? गुड। आसमी, रवि? ओके ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन लेके आएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, लेट्स एंड द मीटिंग। ओके, थैंक यू। Okay, we'll next in the meet in the next class. Okay, thank you.